कब तक आना है? السلام علیکم. وعلیکم السلام. بھائی اس طرح نہیں ہوتا, ایسے ہوتا ہے. ٹینگ 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 سلام. وعلیکم السلام. السلام علیکم بچوں, کیسے ہیں آپ لوگ؟ وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. اٹینڈنس شروع کرتے ہیں بیٹا. آپ کی طبیعت کیسی ہے سر؟ اٹینڈنس پلیز. عبد القدیر, عبدہ نور, عدیل احمد. سر آئی تھنک آپ نے دوسرے کلاس کے اٹینڈنس اسٹارٹ کیا. آپ صحیح کہہ رہے ہیں, بس 1 منٹ میں دوبارہ جنریٹ ہو جائے گی. اور آپ لوگ سنائیں کیسا چل رہا ہے آپ لوگوں کا؟ کوئی ایشو تو نہیں ہے کسی قسم کا؟ نو سر. الحمدللہ کوئی ایشو نہیں ہے سر. بس آپ تھوڑا سلیبس اگر بتا دیں گے ایگزامینیشن مطابق تو تھوڑا ایزی ہو جائے گا سر. تھوڑا ایزی کر کے بتا پروجیکٹ میں دیں. تھوڑا بہت ایشو ہے. کوئی بات نہیں بیٹا, پریشان نہ ہو آپ لوگ, ساری چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. سلیبس بھی بتا دیں گے. پروجیکٹ میں بیٹا ایشو نہیں ہونا چاہیے آپ لوگوں کو. آپ لوگوں نے ایک کوشچن بنانا ہے اور اس کا آنسر آپ نے فائنڈ کرنا ہے, اور سمجھ لیں کہ یہ ایک قسم کا ایکسٹینڈڈ ایسے ہے جو آپ لوگ لکھ رہے ہیں. اور سر وہ تو بات صحیح ہے, لیکن ایک کویسچن کا آنسر دینا اور وہ بھی 2 سے 3,000 ورڈ میں تو بہت زیادہ ہے سر. 2000 ورڈ نہیں بیٹا, 3000 سے 3500 کے ورڈ ہے. 3000 to 3500 ورڈ ہے. سر ایک کویسچن لے کے اس کو الیبوریٹ کریں گے اور اس کا حل تلاش کریں گے, ایسے ہی ہے نا سر؟ بالکل. آپ دیکھیں گے, اگر میں آپ کو مثال دیتا ہوں, جیسے ابھی کوئی بندہ آپ سے پوچھتا ہے کہ بلوچستان کے پرابلم کیا ہیں, اینڈ ہاؤ what is the Indian involvement and how India is involving creating disturbance in Balochistan. تو اس کے سوشل اکنامک پولیٹیکل اسپیکٹ ہیں, کس طریقے سے وہ کر رہا ہے, کن کن لوگوں کے ساتھ اس کے کنیکشنز ہیں, یہ ساری چیزیں آپ لوگ اس کے اندر ایکسپلین کریں گے. اور یہ ساری چیزیں آپ لوگ ایکسپلین کریں گے تو آٹومیٹکلی یہ کمپلیٹ ہو جائے گا. پریشان نہ ہو, ٹائم آپ کے پاس کم ہے, مقابلہ سخت ہے,
तो इसको जल्दी से जरा कंप्लीट कीजिएगा। और कोई भी क्वेश्चन ले सकते हैं कोई भी। आपने अपने टॉपिक से रिलेटेड बनाना है ना बेटा। ओके गाइस, अब्दुल मोइस इरफान, प्रेजेंट सर। आबिद अली, प्रेजेंट सर। आफाक अहमद, अफीफा सोहेल, Present, sir. अली हसन, अली मुमताज, अलीजा नज़ीर, अलीजा शहजाद, Present, sir. अल्लाह बचायो, प्रेजेंट सर। आमिर प्रेजेंट हयात, सर। ओके, आमिर हयात, अमना आदिल, आकिब सदीक, यस सर। ओके, अरबाज खान, यस सर। अरूज रियाज, Present, sir. अरूसा आसिफ, Present. आयशा अनवर, Present, sir. आयशा हारून, Present, sir. आयशा खान, Present, sir. बाबर अली, प्रेजेंट सर। बख्त अली, प्रेजेंट सर। बिस्मा जावेद, Present, sir. दर मोहम्मद फैसल, प्रेजेंट सर। ईमान खान नियाजी, Present. इज़्ज़त तबस्सुम, Present, sir. फहद अकरम, प्रेजेंट सर। फैसल महमूद, फैसल सालेह, प्रेजेंट सर। फैजान खान, फातिमा एजाज, Present, sir. गुलजमान खान, हबीबुल्लाह खान, हमजा फारूक, प्रेजेंट सर। हारिस इलाही, हारून रशीद, हसनैन ताहिर, हंसा यूसुफ, इफ्रा भट्टी, Present. इमरान आलम, सर उसका नेट इशू है मेरे ख्याल से, उसका हैंड रेज है ओके, इस्मा, क्लास में प्रेजेंट। Present, sir. जुनेद अनवर, प्रेजेंट सर। कामरान नासिर, कमल हसनैन, Present, sir. काशिफ, काजिम अली, प्रेजेंट सर। उसके बाद हैं एहसन मुर्तज़ा, प्रेजेंट सर। महानूर हसन, मलिक अब्दुल वहाब कासी, प्रेजेंट सर। मरवा माहम, Present, sir. मरीम मुमताज, Present, sir. मरीम मुमताज है बेटा, ओके, महर Present. जरिया वली, मियां अफनान, प्रेजेंट। मनाहिल अफजल, मोहम्मद असलम, ऐसा तबस्सुम कौन है? मोहम्मद असलम नहीं है, मोहम्मद असलम नहीं है, ओके, मबर अरशद, Present. मबीन भट्ट, प्रेजेंट सर। मुदस्सिर उमर, अयानुर रहमान, प्रेजेंट सर। फाइज अकलीम, प्रेजेंट सर। मोहम्मद हमजा, मोहम्मद हाशिर, प्रेजेंट सर। मोहम्मद हसन, प्रेजेंट सर। जहांजीब खान, प्रेजेंट सर। कमाल अवैस, प्रेजेंट सर। मोहम्मद उकाशा, प्रेजेंट सर। उस्मान खान, अमार असगर, प्रेजेंट सर। अंस कदीर, प्रेजेंट। हैदर असलम, प्रेजेंट। खबर अली,
Present, sir. Mohammad Mansoor, Present, sir. Shahriyar Khan, Present. Tawqir Farooqi, Present, sir. Muhammad Umar, Present, sir. Uzair Kasmi, वो सारा नहीं गिनते. उजैर कासमी. प्रेजेंट सर. बेटा आप लोग अपने माइक बंद रखें. वलीद भट्ट, Present, sir. मुनज़्ज़ा कैसर, मुनीब मुश्ताक, मुस्तनसर रशीद, प्रेजेंट सर. नादिया नौरीन, Present, sir. निमर आरिफ, नौमान परवेज, प्रेजेंट सर. राबिया फिज़ा आमिर, Present, sir. राना हैदर, राजीब खान, राजीब खान. Yes, sir. Present. ओके. साद अहमद, Present, sir. राइट. साद अहमद, साद नूर, Present, sir. सईद अहमद, प्रेजेंट सर. सगीर अली, Present, sir. साहिबजादा मोहम्मद सैयाब, सैफुर रहमान, Present, sir. सलमान अली, सलमान अली, संगीन खान, Present. साकिब शहजाद, Present, sir. सारा आलम, Present, sir. शानजा इकबाल, सुरैया कौसर, Present, sir. सवेरा हारून, Present, sir. सैयद मोहम्मद शाहजमान, सैयद मोहसिन रजा बुखारी, प्रेजेंट सर. सैयद मूसा, सैयद मूसा, ताहा जावेद, उसामा लगारी, Yes, sir. Yes, sir. उसामा शबीर, वजदानुल हक, वर्दा आबिद, Present, sir. युसरा आरिफ, युसरा आरिफ, जोहराना, जुनैरा जफर. अब जो लोग लेट ज्वाइन किए उनकी अटेंडेंस के लिए दोबारा से एक मरतबा आपको फिर रोल कॉल जिन लोगों की नहीं हुई. आफाक अहमद, प्रेजेंट सर. अली हसन, अली हसन, अली मुमताज़, अलीज़ा नज़ीर, आमिर हयात. उसके बाद हैं फैसल महमूद, फैज़ान खान, Yes, sir. Present. गुलजमान खान, गुलजमान खान, हबीबुल्लाह खान, हारिस इलाही, फौजा यूसुफ, और काशिफ, महनूर हसन, मोहम्मद असलम, उज़ैर कासमी, मुनीब मुश्ताक, साहिबजादा सैयाब, सर उजैर कासमी प्रेजेंट. साहिबजादा सैयाब के बाद हैं सैयद शाहजमान, शाहजमान का माइक आ गया. Yes, मैं आगे सर. Mic नहीं होगा. सैयद मूसा और वजदानुल हक. ये कौन बोला था अभी? उज़ैर कासमी. Present, sir. सर उजैर. सर उसामा शबीर. भाई आप ये बार बार 2 मरतबा मैंने अटेंडेंस कॉल की, अभी दोबारा फिर आए हैं आप. नहीं सर, मैं एक्टिव ही बैठा हुआ. और कौन है बेटा? सर उजैर कासमी की लगा. जी बेटा. ओके गाइस. क्या मत जी बताइए क्या कह रहे हैं आप? सर आप आगे मत की होगी प्रेजेंट. बेटा आपने बोला नहीं है.
सर मैंने दोबारा नाम आशिफ, okay guys, हो गया बेटा आपका. सर Today we are सर जो going to ये start. 21st अमेंडमेंट है उसकी एक रिकॉर्डिंग आई है सिर्फ सर, हालांकि 2 लेक्चर्स हुए हैं हमारे. कोई बात नहीं बेटा, उसी में सारा कुछ है, परेशान ना हो. सर वही कर लें बस फिर. जी बेटा वही कर लें. Okay guys, Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Today we are going to start with the new topic, and new topic is related to the National Action Plan. Again, making a connection with my previous lecture, when we people were going through the Protection of Pakistan Ordinance and the 21st Amendment, the basic rationale behind these initiatives was that the laws which are existing in Pakistan, they have not been very effective to eradicate the phenomenon of terrorism from Pakistan. The very first reason is earlier, to deal with the terrorist activities, with the phenomenon of terrorism, laws were not existing. And when government of Pakistan realized that we should go for it after the APS atrocity, more specifically, it was a common realization among the masses of Pakistan and the government at large as well. People, they were coming up with the idea that the people who are using the name of religion in order to extend their interest, they are not basically fighting for their religious cause. They are basically terrorists. They are basically criminals. They are using the religion as a tool in order to extend their interest. So they got nothing to do with Islam, with religion. So that's why, as you people have already learned that when we people were going through 21st Amendment, the very first point was that terrorism was attached with religion. Though there was a criticism in Pakistan that it should not have been done, ऐसा नहीं होना चाहिए था, because some secular political parties, they were also having their own band outfits, they were having their own gangs, they were having their own militant wings, they were also involved in terrorism. So to fix the religion with terrorism was not a good idea, was not a good thing. That so इस वजह से there was criticism by a large number of people in Pakistan. So why National Action Plan was being introduced? APS attack happened. Earlier, law enforcement agencies, they were engaged in different military operations against the terrorist groups in Pakistan. And then later on, the law enforcement agencies and the government of Pakistan realized that to uproot the phenomenon of terrorism with through just the terrorist activities is not a very successful strategy. It is not a very successful strategy. We have to stop the phenomenon of terrorism from Pakistan with a comprehensive strategy. Until unless we are not going to adopt a comprehensive strategy, we will not be in a position to uproot the phenomenon of terrorism in Pakistan. So there were different factors, the contributing factors, which were creating bad law and order situation. And those factors, they were being exploited by terrorist groups in Pakistan. So the people who was the sympathizer or the funder or the supporters or the helpers of terrorists, somehow, because of the existing factors, they were having a sense of legitimacy. Okay, whatever they are doing in the right direction. Not legitimacy as such, they were having the sense, self-satisfying notion, logic, that whatever they are doing in the right direction. So this was their self-justifying logic or strategy, because of which terrorism was happening in Pakistan. So the government of Pakistan was of the opinion, the government of Pakistan realized, and then that we should have to have a comprehensive strategy that would be dealing with all aspect of terrorism. So with this frame of mind, National Action Plan was introduced. National Action Plan was basically initially composed of 20 points. It was having some recommendations with the reference to the economic factors, social factors, religious factors, political factors, governance, administrative factors, which were helping in one way or the other. And these factors, they were being used by the different dissident groups in Pakistan to extend their interest. So National Action Plan apparently was a comprehensive strategy to deal with the phenomenon of terrorism in Pakistan. Today, we will be discussing
out of these 20 points, how many points they are being implemented in their two Latin spirits, and how many points they are not being implemented yet. कौन कौन से पॉइंट्स ऐसे हैं जिनको द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हैज implemented, and कौन कौन से points which are not being implemented yet. These are the things that we are going to learn today. So as I told you that it was a very comprehensive strategy. So let's discuss in what way National Action Plan has helped the government and law enforcement agencies to eradicate the phenomena of terrorism. And if some points of National Action Plan they have not been discussed, then what are the factors behind this ineffectiveness? Why government has not been able to do this? The very first point, ladies and gentlemen, is related to the execution of convicted terrorists. Execution of convicted terrorists. Remember one thing, law enforcement agencies, they were continuously in the state of war, and they were operating against the band outfits, terrorist outfits, and they were very successful while eradicating and arresting the people who were involved in these heinous activities, in the bad terrorist activities. They were being arrested, they were shown before the court of law. Courts, according to the law, interpreted that these terrorists, these are the convicted terrorists, and these convicted terrorists should be hanged. But because of some political pressures, like the European Union pressure and the pressure from other Western countries, the government of Pakistan, more specifically during the People's Party age, government was not hanging the people. They were convicted terrorists, they were certified terrorists, and the court announced that these people should be hanged. They should be hanged till death. But because of some political pressures, these people, they were living in barracks, these people, they were living in jail, and they were over there running a sort of what you say, recruiting agency ban chuki huyi thi jails, and they were inspiring people, and this is how they were becoming more fatal than the living things outside the jail. So the very first point was the people who are being convicted terrorists, they should be hanged immediately. And the government of Pakistan should not tolerate any political pressure from any Western country. They should be immediately. And there was a point, ek waqt aisa aaya tha, more than 10,000 people, they were convicted terrorists and they were not being punished as per their crimes. तो इतनी बड़ी तादाद अगर जेलों में, if the jails they were full of such criminals, तो किस तरीके से terrorism रोका जा सकता था पाकिस्तान में? And they were having their linkages within the jails, outside the jails, within the society, and this is how they were in a position to perform their different things according to their interests. They were performing, और इस वजह से ये very first point was के execution of the convicted terrorist होना चाहिए. दूसरा था establishment of the special trial courts, the military courts. There were दूसरा point था special trial courts were being made. As I told you that in our existing system, the judge, the lawyer, the witness, the prosecutor, these people, they were not immune from the threats of the terrorist organizations. So in order to provide protection to the judges, to the lawyers, to the witnesses, special trial courts, military courts were being made in order to convict the terrorists. जो convict terrorists फंस जाते थे. You know, I have already discussed with you that whatever the things they were happening in Pakistan, most of the terrorists, they used to get bail, they used to get freedom from the court decisions. Reason being kya tha? The criminals, the terrorists, they were having the knowledge how this legal system, which is full of drawbacks, should be exploited, and they used to remain very successful in order to exploit the existing faults of our legal system. That's why they used to get the bail. In order to fill this gap, the ineffectiveness of our legal system, special trial courts, military courts, they were being made. Second point. Third point was very important again. No armed militia would be allowed to function in country. No armed militia would be allowed to function in country. What does it mean? Sir, armed क्या? Armed militia, यानी कि militant militia. Militia वो जिनको mercenaries होते हैं, किराए के लोग, जो उन्होंने अपनी बैंड आउटफिट्स बनाई हुई थी, जिन्होंने अपने मिलिटेंट विंग्स बनाए हुए थे, मोर स्पेसिफिकली. सर ये मलेशिया वर्ड नहीं है? मलेशिया एक ही बात है ना बेटा, जैसे भी इसको प्रोनाउंस करें.
मलेशिया कोई भी no armed militias military से ना should सर not स्पेलिंग बता be militias के बेटा MILITIAS militias no armed militias should be allowed to function in our country. यानी कि आपको पता है MQM के अपना मिलिटेंट विंग था, पीपल्स पार्टी का अपना मिलिटेंट विंग था, ANP जो वहाँ पे थी उनका अपना मिलिटेंट विंग था. इसके अलावा जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस थे, they were having their own militant wing and they used to use these militant wings in order to extend their interest. And कराची के हालात क्या थे, पूरे पाकिस्तान में क्या चल रहा था, तो ये डिसाइड किया गया चाहे रिलीजियस पॉलिटिकल पार्टीज हैं, नॉन रिलीजियस पॉलिटिकल, नो पॉलिटिकल पार्टी, not a single person, not a single political party would be allowed to have their militant wings. और कोई भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है, जैसा कि बैंड आउटफिट हैं, हरकतुल मुजाहिदीन, हरकतुल इंसान, हिजबुल मुजाहिदीन, हरकतुल, और उसके बाद इस तरह की लश्कर तैयबा हो गया, जैश मोहम्मद हो गया, और फिक्का जाफरिया की जो अपने मिलिटेंट विंग से. The government announced that no political party, nobody would be allowed to have their own militant wing, militia to function in country. सारों के, चाहे वो religious है, non-religious. उसके बाद strengthening and the activation of NACTA. NACTA stands for National Anti-Counter-Terrorism Authority. National Counter-Terrorism Authority basically. National Counter-Terrorism Authority. ये NACTA, ये basically क्या था? पूरे पाकिस्तान में जितनी भी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, पाकिस्तान की जितनी भी इंटेलिजेंस एजेंसीज थी, they were supposed to work within the field, gather the information, and that information was sent to the NACTA. वहाँ पे उस इंफॉर्मेशन की प्रोसेसिंग होती थी. Then after the processing of that information, comprehensive strategy was adopted how to deal with this phenomena, how to deal, कहाँ पे कैसे ऑपरेशन करना है, कौन कौन से लोग इसके अंदर इन्वॉल्व होंगे, कैसे टेररिस्ट के खिलाफ जाना है. तो स्ट्रेंथनिंग ऑफ दी ये नेक्टा बनाई गई, नेक्टा नेशनल काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी. ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी एक अच्छी रिफॉर्म थी जो बनाई गई थी कि पूरी इंटेलिजेंस एजेंसीज पहले अपनी रिपोर्टों को एक हेडक्वार्टर में भेजती थी, वहाँ पे एनालिसिस होता था, वहाँ पे स्ट्रेटजी बनती थी कंप्रीहेंसिवली, और सारे लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज दे यूज्ड टू कोऑपरेट. दिस इज हाउ द ऑपरेशंस अगेंस्ट द टेररिस्ट ग्रुप्स दे यूज्ड टू बी वेरी क्लासिफाइड एंड वेरी सक्सेसफुल. ये बहुत अच्छा पॉइंट था जो इस वजह से हुआ. उसके बाद काउंटरिंग हेट स्पीच, काउंटरिंग हेट स्पीच, एक्सट्रीमिस्ट मटेरियल. आपको पता है शिया और सुन्नियों के दरमियान एक मस्जिद में एक शिया आलिम बोल रहा है, दूसरी में सुन्नी आलिम बोल रहा है, और उनके लोगों को, जज्बात को, दे यूज्ड टू पंप द इमोशंस ऑफ पीपल, एंड दिस इज हाउ द शिया सुन्नी दे यूज्ड टू फाइट. और इसी तरीके से बताया गया कि नाउ नो हेट मटेरियल विल बी पब्लिश्ड, no hate announcement would be made through the speakers, through the इस तरीके से. तो ये hate speech को रोका गया. It would not be published in newspaper, it would not be published in books, ये जो मजल्ले वगैरह पहले निकला करते थे, मैगजीन्स, इस तरह की कोई चीज भी पब्लिश नहीं होगी और इसको रोका जाएगा. तो मतलब कि पाकिस्तान के अंदर इफेक्टिव स्ट्रैटेजी. ये देखें, पहले कन्विक्टेड टेररिस्ट हैं, फिर स्पेशल कोर्ट्स हैं, उसके बाद मिलिशियास को खत्म किया जा रहा है, नेशनल काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी को रीऑर्गेनाइज किया जा रहा है, स्ट्रेंथन किया जा रहा है, हेट स्पीच को रोका जा रहा है. ये पॉइंट हमने जो हेट स्पीच के बारे में. उसके बाद है चोकिंग द फाइनेंसेस ऑफ टेररिस्ट्स. आपको पता है पाकिस्तान के अंदर सबसे ज्यादा जो खैरात होती है वो रिलीजन के नाम पे होती है. सदका खैरात देते हैं, ज़कात देते हैं, और ये लोग, ये जो बैंड आउटफिट्स थी, जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस थी, दे यूज ऑन द नेम ऑफ इस्लाम, ऑन द नेम ऑफ ह्यूमैनिटेरियन कंसर्न, ऑन द नेम ऑफ जिहाद, on the name of the help for needy people, they used to engage in the fundraising campaigns, and this is how. और फिर बड़ी ईद के ऊपर जो कुर्बानी की खाले होती थी वो सारे इकट्ठे करते थे, और फंडिंग, सदका खैरात वगैरह, ज़कात इकट्ठा करते थे ये लोग. तो ये जो पैसा था पूरे पाकिस्तान में, it used to be in billions of rupees, not 100 billion, 200, 1000 billion rupees तक ये फंडिंग पैसा इकट्ठा होता था. और इस चीज़ों को रोका गया कि इंस्टेड ऑफ गिविंग टू द बैंड आउटफिट्स, दिस मनी शुड बी स्पेंट टू द हॉस्पिटल्स, जहाँ पे लोगों का फ्री इलाज हो रहा है, वहाँ पे ये चीज़ें. और इनकी टेरर फाइनेंसिंग को रोका जाए, फंडिंग इनको ना हो सके, पैसा ना मिल सके. बैंक सिस्टम को ऑर्गेनाइज किया गया, उनके ऊपर मॉनिटरिंग रखी गई, एक बंदा किस जगह अपना पैसा भेज रहा है.
तो हर लिहाज से ये बड़ा इम्पैक्ट ज़रूर, इसी वजह से पाकिस्तान में जो दिन में 7-7 धमाके होते थे पूरे साल में माशाल्लाह 7 नहीं होते हैं। ये इंतहाई कम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजी के ज़रिए लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के लोगों ने शहादतें दी, सिविलियन लोगों ने शहादतें दी, और पाकिस्तान से ये टेररिज्म का फिनोमिना एक इंतहाई कंपोजिट स्ट्रैटेजी के जरिए ख़त्म किया गया। नहीं तो ये हमें तो ले लू गया था, और बाकी पूरी दुनिया के जो लोग थे वेस्टर्न कंट्रीज, दे वर प्रोफेसिंग के पाकिस्तान वुड बी नो मोर ऑन द मैप ऑफ द अर्थ बाय 2012, बाय 2015 पाकिस्तान वुड बी डिसइंटीग्रेटेड। ये हो जाएगा, लेकिन पाकिस्तान के लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज ने जिस कुर्बानियां दे के इस चीज को रोका है, ये उन्हीं का कारनामा है। अदरवाइज यही प्लान, दिस सॉर्ट ऑफ प्लान्स वर बीइंग मेड बाय वेस्टर्न कंट्रीज अगेंस्ट इराक, Iraq is no more, against Syria, Syria is no more, against Libya, Libya is no more, Yemen no more, but same strategy was being employed against Pakistan. ये हमारी intelligence agencies and the law enforcement agencies का काम था, जिन्होंने they have made the country much better, and those prophecies they are being broken, उसको distort कर दिया गया, खत्म कर दिया गया, eliminated, and now Pakistan is rising, emerging, strengthening country. अब वो इन चीज़ों में जब नाकाम हो गए, now they are doing what? अब वो 5th generation warfare, इंस्टीट्यूशन को तबाह करो, लोगों को मिसपरसेप्शन करो, उनके दिमागों के अंदर जहर भरो, मुल्क पाकिस्तान का ये डिस्टॉर्ट करो, उसके ऊपर भी अब ये स्ट्रैटेजीज लेकर आ गई हैं। आगे चलते हैं। पहले क्या होता था, द गवर्नमेंट वुड बी इंश्योरिंग दैट प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशन दे वुड नॉट बी इमर्जिंग अगेन। पहले क्या होता था, ये जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन थी, जो बैंड आउटफिट्स थे, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन थी, चाहे वो जैश मोहम्मद, लश्कर जो भी था, जो वगैरह वगैरह, मैं नाम नहीं ले रहा, लेकिन तो उनको वो जब उनको ब्लैकलिस्ट किया जाता था, बैंड डिक्लेयर किया जाता था, दे यूज्ड टू इमर्ज विद अ न्यू नेम। तो बताया गया था व्हाट एवर द स्ट्रक्चर इज देयर इट शुड बी डिसमेंटल्ड फॉर एवर, और उनको दोबारा से दे विल नॉट बी इमर्जिंग अगेन विद अ न्यू नेम। सो बैंड आउटफिट्स, it would be ensured that banned outfits they will not be re-emerging with a new name, they should be banned forever। और उसके बाद काउंटर टेररिज्म एसटीडी बनाई गई, काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट, एंड प्रोफेशनल लेवल पे काउंटर टेररिज्म फोर्स एट द नेशनल लेवल, स्पेशलाइज्ड पीपल, जो सिर्फ लड़ने के माहिर नहीं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में एक्सपर्ट, डेटोनेशन के एक्सपर्ट, साइकोलॉजिकल वारफेयर के एक्सपर्ट, और उसके बाद डॉक्टर्स, उसके अंदर पूरी फोर्स बनाई गई है, जिसको सीटीडी कहते हैं। पंजाब के अंदर सीटीडी बड़ा मशहूर है, सो इज द केस इन हर सूबे के अंदर बनाई गई। और वो क्योंकि पुलिस जो थी उसमें बहुत सारे एलिमेंट्स थे, पुलिस वाज नॉट ट्रेन्ड टू डील विद दीज टेररिस्ट, ये तो गोरिल्ला थे, और गोरिल्ला पुलिस की ये ट्रेनिंग नहीं है, फौज की ये ट्रेनिंग नहीं है कि गोरिल्ला वारफेयर के से लड़ा जाए। तो एक गोरिल्ला वारफेयर से लड़ने के लिए गोरिल्ला फोर्स बनाई गई, ये जिसको काउंटर टेररिज्म फोर्स कहते हैं, और उन्होंने फिर उन्हीं की टैक्टिक्स के जरिए उनको पूरे मुल्क के अंदर पकड़ा, चुन चुन के मारा और ख़त्म किया, और बहुत लोगों को इसको अंदर फिर ये पकड़े गए और मारे गए। उसके बाद बड़ा इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो ये जो मैंने कहा, ये जो डेडिकेशन टेररिज्म, उसके बाद रिलीजियस परसिक्यूशन, ये जो रिलीजन के नाम के ऊपर लोगों को कत्ल कर दिया जाता है पाकिस्तान के अंदर, इट वुड बी इंश्योर्ड दैट the religion would not be used for the vested interest of the banned outfits। इसको ख़त्म किया जाएगा। religious mistreatment would not be happening, इधर चाहे वो क्रिश्चियंस के हों, चाहे मुस्लिम्स हों, चाहे हिंदूज हों, चाहे sectarian violence हो, कुछ भी हो, religious mistreatment को forever it should be napped in the bud, it would be उसको ख़त्म कर दिया जाएगा। और ये हुई सारा। उसके बाद रजिस्ट्रेशन ऑफ मदरसा, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देयर वाज अ टाइम इन पाकिस्तान के कोई 150 के करीब मदरसे थे व्हेन पाकिस्तान केम इनटू बीइंग, पूरे पाकिस्तान के अंदर 150 मदरसास थे। इस वक्त अकॉर्डिंग टू द क्लोज एस्टिमेशन, जो बिग मदरसास हैं, जो बड़े मदरसास हैं, बड़े मदरसास हैं, उनकी तादाद 60,000 है। और छोटे छोटे जो मसाजिद के अंदर बने हुए हैं, जो मदरसे हैं जहाँ पे बच्चे रहते हैं, यानी कि दे आर स्कॉलर्स, दे लिव ओवर देयर, दे स्टडी कुरान एंड सुन्ना, वो जो वहाँ पे हैं उनकी तादाद लाखों में है। एंड इट इज़ अ पैरेलल एजुकेशन सिस्टम इन पाकिस्तान। अब ये जो मदरसा की जो एजुकेशन है, उसके अंदर जो रिफॉर्म्स हैं, उसमें जो द पीपल दे यूजुअली गेट द एजुकेशन, they usually have only two things in front of them. One is to become what you say Molvi,
or to become the terrorist, either to become Maulvi or to become terrorist. तो इस एजुकेशन के बाद इनकी कोई अफादियत नहीं है, या तो the students who are getting education from the madrasa they would becoming the Maulvi, मस्जिद का इमाम बन जाएंगे या मुफ्ती बन जाएगा, या he would be raising weapons और इस्लाम के नाम पे जिहाद करेगा. अब यहाँ पे बताया गया मदरसा वुड बी रेगुलेटेड, और इन्हीं मदरसा के स्टूडेंट्स को, ये पैरेलल है, ये पाकिस्तान में जो गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर पढ़े, प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले मदरसों से के स्कूलों से ज्यादा स्टूडेंट्स they are inducted, they are trained, educated in religious madrasas, in madrasों के अंदर, और they are more than the private students and the regular schools में भी ज्यादा था. तो parallel education system, and वो उनके पास क्या है, इतनी मसाजिद नहीं है, तो उनके पास एक ही काम रह जाता है, to raise weapons and go for jihad. अब ये बताया गया कि regulation of madrasas is very important, regulation of madrasas is very important. और इस मामले के अंदर क्या किया गया कि रिलीजियस मदरसा को रजिस्टर किया जाएगा, और उनको खास तौर पे कहा जाएगा कि these people they would be teaching science subjects, math, physics, chemistry, bio, math, English, कंप्यूटर भी उनको पढ़ाया जाएगा, ताकि when they are getting education from madrasa they will become an effective member of the society rather than becoming or going for the mosque, searching for the mosque, or going for jihad. तो इनको they would be taught physics, chemistry, bio, math, they would be taught computer, English, and this is how they will become very effective and vibrant member of the society, वो बन जाएंगे. तो ये एजुकेशन इसके अंदर बड़ी ज़रूरी थी, और इस वक्त लाखों के करीब हैं. और फिर ये प्रोड्यूस क्या कर रहे हैं, शिया सुन्नी के तफरीका विद इन सुन्नियों के अंदर, बरेलवी, देवबंदी, वहाबी विद इन शिया, और तरह तरह की सेक्टेरियन वायलेंस और हेट स्पीच, वो इंतहाई इंडोक्ट्रिनेटेड लोग होते हैं, इंडोक्ट्रिनेटेड. बहुत कम मदरसा हैं जिनके अंदर जदीद एजुकेशन दी जा रही है, और वहाँ से पढ़ने वाले जो स्टूडेंट्स हैं, दे आर मोर, दे आर मोमिन, they are having their solid conviction on Quran, on Allah Almighty, Quran and Sunnah. They are the, not only they are alim, rather they are the practicing Muslims. वो बड़े बहुत कम मदरसे हैं ऐसे पाकिस्तान में. ज़्यादातर fanatics, we are producing fanatics, not in hundreds, not in thousands, we are producing fanatics in millions. और वो पाकिस्तान की सोसाइटी में they become उनको कुछ नहीं आता. तो इस चीज़ को रोका गया, पाकिस्तान के मदरसों को पकड़ा जाए और मदरसों को रेगुलेट किया जाए एजुकेशन में, और उनके रिफॉर्म्स लेकर आए. बड़ा ह्यूज क्राइड वेल्थ हो रहा है. रिलीजियस पॉलिटिकल पार्टीज दे आर नॉट रिकंसाइलिंग विद द डिमांड्स ऑफ द गवर्नमेंट. सम ऑफ द मदरसास दे आर मेकिंग देमसेल्फ टू बी रेगुलेटेड हो रहा है. उसके बाद टेररिस्ट को नो ग्लोरिफिकेशन, नो ग्लोरिफिकेशन ऑफ टेररिस्ट. पहले जो ऑन द नेम ऑफ रिलीजन, ऑन द नेम ऑफ जिहाद, ऑन द नेम ऑफ what you see sectarian affinities, parochial differences, people they used to be glorified, और उनको पब्लिक्स में उनको glorify किया जाता था, न्यूज़ में, प्रिंट मीडिया में, सोशल मीडिया पे. these sort of people they used to be glorified earlier. अब बताया गया if these people they are involved in these kind of activities, not a single person would be allowed to glorify them in order to stop this trend in the society, और लोगों को एक नया अप्रोच मिलेगा. And this is how the things they started to happen. उसके बाद FATA reforms, बड़ा अच्छी बात है. FATA reforms याद रखिएगा, in the last 72 years the people of FATA they were not having their promotional status, they were not having their due social economic rights. They were being regulated through the FCR, Frontier Crimes Regulation, जो के 2-3 लोग इतने पावरफुल होते थे, they used to do, उनको बहुत हालात खराब थे उनके, और बहुत बुरे हालात थे उनके, और उनको नेशनल स्ट्रीम्स के अंदर पिछले 60 सालों में नहीं किया गया. फिर बाद में इनको अब बाहर में जाके इनको मर्ज किया गया है और प्रोविंस का स्टेटस दिया गया, और लोगों पे छोड़ा गया कि वो फाटा रिफॉर्म्स का था, क्योंकि यहीं से पीपल, यहीं पे जो लोग हैं, दे गॉट देयर स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन इधर इन द शेप ऑफ ट्राइबल ट्रेडिशंस और द रिलीजियोसिटी व्हाटसोएवर. वो लोग थे, वो बड़े सख्त जान, ब्रेव, फाइटिंग स्पिरिट रखने वाले थे. वहाँ पे उनको कहा कि इन्हीं लोगों को दे शुड बी रिफॉर्म, सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल राइट्स शुड बी एक्नॉलेज, दे शुड बी ब्रॉट इनटू द मेन स्ट्रीम, यानी कि इनको मेन स्ट्रीम ऑफ पाकिस्तान के अंदर लेकर आना जाए. उसके बाद कम्युनिकेशन नेटवर्क्स ऑफ टेररिस्ट ग्रुप्स, जो लोग सवात के अंदर रहते हैं उनको पता है मौलवी फजलुल्लाह क्या कर रहा था वहाँ पे,
और मौलवी दूसरे क्या कर रहे थे, दे गॉट देयर ओन रेडियो सिस्टम, दे गॉट ऑन देयर ट्रांसमिशन सिस्टम्स, दे गॉट, और वो मसलसल कंटिन्यूसली प्रीच कर रहे होते थे लोगों को एक फ्रीक्वेंसी के ऊपर। तो उनके कम्युनिकेशन सिस्टम को जो प्रोपेगेंडा के लिए यूज होते थे, प्लस इनके जो कम्युनिकेशन सिस्टम है थ्रू दी सैटेलाइट्स, मोबाइल्स, थ्रू आया मोबाइल्स, थ्रू दी अदर टेलीविजन सेलिफोन जो टेक्नोलॉजीज यूज हो रही थी, उनके जरिए मीडिया के जरिए इनकी कम्युनिकेशन रोकना है, इंटरनेट के जरिए इनकी कम्युनिकेशंस को रोकना है, डिसमेंटलिंग दी कम्युनिकेशन नेटवर्क्स ऑफ टेररिस्ट, उसके ऊपर काम किया गया, वेरी कम्प्रिहेंसिव। उसके बाद इंटरनेट और सोशल मीडिया के अब्यूज को, आज आपके मुल्क आपको पता नहीं होता, आप सोशल मीडिया पे कोई खबर पढ़ते हो आपका दिमाग खोल पड़ता है, ये क्या इन्फॉर्मेशन है, और हकीकत उसमें कुछ भी नहीं होती। Half information is always dangerous. We are not living in the age of information. We are living in the age of misinformation. और एक खास किस्म का एक नैरेटिव, एक खास किस्म की अप्रोच दैट इज बीइंग स्प्रेड थ्रू द सोशल मीडिया। सोशल मीडिया आपको ट्रिगर कर रहा है, आपकी विशेस को, नाम्स को, ट्रेडिशंस को। सोशल मीडिया आपके बारे में आपसे ज़्यादा जानता है, आपकी लाइकिंग क्या है, डिसलाइकिंग क्या है, आप किन लोगों को के साथ कनेक्टेड हो, कौन कौन से आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, कौन कौन से फ्रेंड्स हैं, किन चीज़ों को आप पसंद करते हो, किन चीज़ों को डिसलाइक करते हो, क्या चीज़ें आप देखते हैं, किन चीज़ों को एस्पायर करते हो, सर्च करते हो। दे गॉट द डेटाबेस एंड अकॉर्डिंगली उन्हीं चीज़ों को वो एनालिसिस करते हैं और वो फिर आपको देते हैं। और जो लोग, और ये देखें, ये मिस इन्फॉर्मेशन की, वी पीपल वी आर बीइंग मेड डिसअलुएंट, हमें डिसअलुएंट का शिकार, हमें पता ही नहीं हम क्या कर रहे हैं, और लाइक शिप्स दे आर पुशिंग अस टुवर्ड्स वन पर्टिकुलर डायरेक्शन, और इसी चीज़ को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। सोशल मीडिया का ये जो टेररिज्म के लिए टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस फॉर मिलिटेंसी इन पंजाब के अंदर भी आपको पता है, साउथ पंजाब के अंदर मोर स्पेसिफिकली, जहाँ जहाँ पे एजुकेशन नहीं है, लिटरेसी रेट कम है, अनएम्प्लॉयमेंट है, पॉवर्टी है, दीज आर द बेस्ट ग्रास रूट लेवल, दीज आर द बेस्ट ब्रीडिंग ग्राउंड्स ऑफ टेररिस्ट्स। तो वहाँ पे सोशल एक्टिविटीज़ हों, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हों, पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हों, तो इन सारी चीज़ों से क्या होगा, इन सारी चीज़ों से ये चीज़ें ख़त्म होती हैं। लेकिन ज़्यादा साउथ पंजाब, इस तरह के जो रूरल एरियाज ऑफ पाकिस्तान है, रूरल एरियाज जो पाकिस्तान है, वो उसके अंदर ये जो ब्रीडिंग ग्राउंड्स हैं ये बन रही हैं, उसमें हुकूमत को बोला गया वहाँ पर सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल रिफॉर्म्स लेकर आएँ, और उन्हीं रिफॉर्म्स के ज़रिए पाकिस्तान को बेहतर अंदाज में देखा जाएगा। उसके बाद मिलिटेंसी को ख़त्म किया जाए। कराची ऑपरेशन शुड बी ब्रॉट टू इट्स लॉजिकल कंक्लूजन। कराची ऑपरेशन शुड बी ब्रॉट टू इट्स लॉजिकल कंक्लूजन। कितने, एक ज़माना था, कराची की एक ख़ास पॉलिटिकल पार्टी जो थी, उसका एक कहना ये मानना था कि वी कैन पैरालाइज द होल कराची विद इन 5 to 7 minutes, एंड दे गॉट द कैपेबिलिटी टू डू दिस। वो पूरे के पूरे कराची को 7 मिनट के अंदर अंदर मफलूज कर देते थे, सिग्नल सिस्टम तबाह कर देते, ट्रैफिक जैम हो जाती थी, हर चीज़ तबाह बर्बाद कर देते थे वो 7 मिनट्स के अंदर। और फिर वहाँ पे गैंग्स वॉर चल रही होती थी। लियारी के अंदर क्या चल रहा होता था, कटी पहाड़ी पे देखा आपने क्या, 90 के अतराफ में क्या हो रहा होता था, सोराब गोट के अंदर क्या चल रहा होता था, यानी कि बैड लैंड सिचुएशन, कियास वाज एट इट्स क्लाइमैक्स। तो ये किसी 2-3 चीज़ों की वजह से था, और गवर्नमेंट ने उसको पर डिसाइड किया, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी ने रिसर्च किया, फिर उनको डिसमेंटल किया। लेकिन वही काम हुआ जो हमारा सवात के लोगों के साथ हुआ, फाटा के लोगों के साथ हुआ। क्या हुआ, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को काम दिया गया कि यू आर सपोज टू क्लीन द एरिया, उन्होंने क्लीन कर दिया। अब उनको रिहेबिलिटेट किसने करना था, उनको उनके घरों में किसने लेके जाना था, उनके कारोबार बना के किसने देने थे, ये गवर्नमेंट ने करना था, और गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया। और फिर पाकिस्तान में तरह तरह के नारे लगने शुरू हो गए, ये जो दहशतगर्दी है, ये जो दहशतगर्दी है। भाई रियासत के इदारों ने जो काम करना था कर लिया, अब हुकूमत कहाँ है, उन लोगों को घरों पे लेके जाए, उनके कारोबार जो तबाह हुए हैं लेके आए। कराची में भी ये हुआ, लॉजिकल कंक्लूजन तक लेके जाना था, उसके बाद छोड़ दिया गया। अब कराची के गटर उबल रहे होते हैं, पूरे कराची का जो सीवरेज सिस्टम तबाह बर्बाद कर दिया गया, खास जहन से कूड़ा करकट, स्टिंकिंग स्मेल्स वहाँ पे खास अंदाज में, और वहाँ पे पीने को पानी नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, और वहाँ पे हीट वेव की वजह से मेडिसिन नहीं मिल रही होती। तबाह बर्बाद किया गया पूरे के पूरे कराची को। मिलिटरीली
लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज ने काम किया, अब इसको प्रोटेक्ट करना था, सिविल गवर्नमेंट्स ने उनको लेके चलना था ताकि उनके मसाइल खत्म होते, पानी के मसाइल खत्म होते हैं, वहाँ पे सीवरेज के मसाइल खत्म होते हैं, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी के मसाइल खत्म होते हैं। लेकिन इस पाकिस्तान को जो 70% रेवेन्यू देता है उसको हमने जानबूझ के तबाह बर्बाद किया, खुद अपने हाथों से तबाह बर्बाद किया। सिविल गवर्नमेंट्स, दे आर इनइफेक्टिव गवर्नमेंट्स, करप्ट, बैड, डर्टी, एब्नॉक्सी, स्टिंकिंग गवर्नमेंट्स, और ये हुआ पाकिस्तान के अंदर। आगे चलते हैं। उसके बाद बड़ा इंपॉर्टेंट बात है कराची को बलोचिस्तान रिकंसिलिएशन। There was a time when 70% of Balochistan, it was not under the control of government. 70% Balochistan, it was not under the control of government. और फिर बाद में सेटलर्स को चुन चुन के मारा गया। पूरा तकरीबन आपके बलोचिस्तान के अंदर हालात बहुत ख़राब हो गए। डिसिडेंट ग्रुप्स, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज, दे वर वर्किंग, chaos was at its climax। और फिर बलोचिस्तान, आगाज़ हकूक़ बलोचिस्तान पहले आया, फिर बलोचिस्तान रिकंसिलिएशन हुई, फिर वो जो पहाड़ों पे लोग चढ़े हुए थे उनको नीचे लाया गया, दे आर ब्रॉट टू द नेशनल स्ट्रीम, उसको लाया गया। दिस इज़ हाउ नाउ थिंग्स दे आर। अब हालात बहुत अच्छे हैं, अब बहुत अच्छे हैं। अब बलोचिस्तान में सोशल एक्टिविटीज़ होना शुरू हो गई, कल्चरल एक्टिविटीज़ हो रही हैं, और जनाब रिलीजियस एक्टिविटीज़ क्लाइमैक्स के ऊपर हैं। फिर भी मुस्लिम दुश्मन, ये जो पाकिस्तान दुश्मन है, उसको कोई ना कोई हिस्सा मिल जाता। अभी रिसेंटली हज़ारों लोगों के साथ जिस तरीके से बताया गया और इसकी जिम्मेदारी जिसने कबूल की, और उसके बाद इंडिया से क्या काशन साइंस के बारे में, ये सारा रिटर्न है। आप इन चीज़ों को इस तरीके से देखा करें, बजाय कि आप किसी इदारों के ऊपर उंगलियां खड़ी कर देते हैं। उसके बाद बलोचिस्तान रिकंसिलिएशन के बाद उसके बाद सेक्टेरियन वायलेंस है। इस पॉइंट्स के ऊपर रोकना है। अफगान रेफ्यूजीज पाकिस्तान के अंदर, ये जो अफगान वार के अंदर 40 लाख मेहमान हमारे घरों में आए थे, वो मेहमान हमारे घरों में गुज़िश्ता 40 साल से हैं। तकरीबन 40 साल हो गए उनको पाकिस्तान में। दे आर नॉट बीइंग सेंट बैक टू देयर होम्स, और उनको घरों पे नहीं भेजा गया। Some people they believe that these are the actual breeding grounds of terrorism in Pakistan. लेकिन now they are a part of Pakistan, अब वो पाकिस्तान का हिस्सा हैं, और पाकिस्तान का हिस्सा हैं और पाकिस्तान के अंदर रहते हैं। उनको उनके घरों में भेजना चाहिए। अफगानिस्तान के हालात ठीक होंगे तो ये अपने घरों में जाएंगे। मोस्ट ऑफ द पीपल दे हैव बिकम अ पार्ट ऑफ पाकिस्तानी सोसाइटी, और इसी वजह से इनके अंदर सम पीपल जो बहुत ज़्यादा नेगेटिव अप्रोच रखते हैं पाकिस्तान की तरफ, बहुत गलत सोचते हैं पाकिस्तान के बारे में, वो हमेशा पाकिस्तान और अफगानिस्तान, पाकिस्तान को तोड़ने में, अफगानिस्तान को जोड़ने में, अफगानिस्तान के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने की बात करते हैं। खाते हैं पाकिस्तान के अंदर हैं, पीते पाकिस्तान में हैं, एजुकेशन पाकिस्तान में लेते हैं, कारोबार पाकिस्तान में करते हैं, रहते हैं यहाँ पे पीसफुली हैं, यहाँ पे हर स्टेटस एंजॉय करते हैं, लेकिन स्टिल पाकिस्तान को स्टैब करते हैं, और सिर्फ एक खास एजेंडे के तहत। एंड दिस पीपल दे आर हैपनिंग इन पाकिस्तान, और उनको देखना है, इनको घरों को भेजना है, इन मेहमानों को। उसके बाद क्रिमिनल जो जुडिशियल सिस्टम है आवर का, इसको रिफॉर्म्स करने की ज़रूरत है। रिफॉर्मिंग द क्रिमिनल जुडिशियल सिस्टम इन पाकिस्तान, हाउ टू रिफॉर्म इट। आपको पता है जो हमारे कहते हैं अल्लाह ताला दुश्मनों को दो चीज़ों से बचाए, एक अदलिया से बचाए, दूसरे हॉस्पिटल से बचाए। रीज़न क्या है? जो कोर्टों से बताए, क्योंकि वहाँ पे एक एक जो चीज़ है वो पैसे मांगती है। आपकी एक लीगल फाइल है, वो इस जगह से दूसरी जगह जानी है, आप पैसे देंगे तो आगे जाएगी। इतनी करप्शन है वहाँ पे, इतने हालात ख़राब हैं। इस क्रिमिनल जुडिशियल सिस्टम, ये जो पाकिस्तान का क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन सिस्टम है, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, इसको रिफॉर्म करने की ज़रूरत है। लोग तो यहाँ तक आ गए, मैं कहता हूँ हमारा ये सिर्फ एक इदारा ठीक हो जाए, पाकिस्तान की 80 से 90% मिजरीज खत्म हो जाएंगी। अदलिया को ठीक होना चाहिए, और हमारे ये लायर बरादरी को मिलकर, हमारे जजेस को मिलकर, हमारे गवर्नमेंट को मिलकर कोई ऐसी स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी कि किसी तरीके से ये ठीक हो जाए तो पाकिस्तान के ज़्यादातर हालात ठीक हो जाएंगे। ये ठीक ना हो, सब कुछ ख़राब हो जाएगा, सब कुछ तबाह हो जाना है पाकिस्तान के अंदर। और ये इसी वजह से हम यहाँ तक पहुँचे। लोग तब यहाँ तक कहते हैं वकील करने के बजाय जज कर लो। ये हमारा जुडिशियल सिस्टम की बुराई है, और इसके ऊपर भी अब इनमें से बहुत सारे पॉइंट्स हैं लेडीज एंड जेंटलमैन विच आर बीइंग इम्प्लीमेंटेड, जिनको इम्प्लीमेंट कर दिया गया, लेकिन देयर आर मेनी पॉइंट्स विच आर नॉट बीइंग इम्प्लीमेंटेड येट। क्वेश्चंस आते हैं। काशिफ ने बड़ी देर से हाथ खड़ा किया, उसके बाद आगे चलते हैं। जी काशिफ बेटा, काशिफ। काशिफ
आवाज नहीं आ रही बेटा, कोई और बंदा सवाल पूछना चाह रहे हैं, क्वेश्चन करना चाह रहे हैं, प्लीज लेट मी नो। सर बलोचिस्तान वाले एक पॉइंट का दोबारा बता दीजिएगा जरा। बलोचिस्तान रिकन्सिलिएशन, बलोचिस्तान के अंदर यानी कि रजामंदी की जाए, नाराज बलोचों को वापस बुलाया जाए, पहाड़ों से उतारा जाए, उन्हें कहें आप मुल्क के खिलाफ काम करने के बजाय मुल्क के साथ मिलकर काम करें, गैरों का एजेंडे का हिस्सा ना बने, रियासत के से अपनी जिम्मेदारियां रियासत को मजबूर करें वो अपनी जिम्मेदारियां दे, बजाय कि वेपन उठाकर पहाड़ों पर चढ़ने से कुछ नहीं है। और आपको जो फंडिंग मिल रही है, आपको जो पैसे मिल रहे हैं, आप मुल्क दुश्मन अनासर का हिस्सा ना बने, आप अपने मुल्क के खिलाफ ना करें और मुल्क के अंदर रहकर मुल्क की बेहतरी के लिए काम करें। जी, इसको पॉलिटिकल बलोचिस्तान रिकन्सिलिएशन कहते हैं। और बेटा और कुछ? अच्छा, अब ये इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं। अगर कोई बंदा मुझसे पूछे कौन कौन से पॉइंट्स इंप्लीमेंट हो गए हैं, बलोचिस्तान रिकन्सिलिएशन इज स्टिल गोइंग ऑन, सेक्टेरियन टेररिज्म इज स्टिल हैपनिंग इन पाकिस्तान, हो रहा है। मिलिटेंसी के रूट्स जब ब्रीडिंग ग्राउंड्स हैं, दे आर नॉट बीइंग एलिमिनेटेड येट, इनके ऊपर काम करने की जरूरत है। कम्युनिकेशन नेटवर्क्स भी हैं, फाटा रिफॉर्म्स हो गई, अच्छी बात है, बलोचिस्तान रिकन्सिलिएशन हो रही है, अच्छी बात है, लेकिन इनको लॉजिकल कंक्लूजन तक लेकर जाना है। और फिर जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को जो काम दिया जाता है, वो जब अपना काम कर लेती हैं तो फिर हुकूमत को चाहिए कि वो जिम्मेदारी ले। हुकूमत लोगों को इस जो ऑपरेशन की वजह से हालात खराब हुए हैं, हुकूमत लोगों को उनके घरों को रिहेबिलिटेट करने में, उनके कारोबार को दोबारा चलाने में, मुआशी सरगर्मियों के लिए उनके लिए काम करे। लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज अपना काम करके चले जाती हैं, बाकी उनको अल्लाह के हालों पे छोड़ दिया जाता है। 20-20 लाख लोग बेचारे कैंपों में रह रहे थे, इंटरनली डिस्प्लेस जो ऑपरेशन हुए हैं, उनको घरों तक किसने लेके जाना था? किसने लेके जाना था उनके घरों तक? किन्होंने उनके कारोबार का? ये गवर्नमेंट का काम था, और गवर्नमेंट आंखें बंद करके शुतुरमुर्ग की तरह अपनी गर्दन रेत में छुपा के चुप कर जाती थी, मेरी जिम्मेदारी खत्म हो गई। ये हुकूमतों का काम है, हुकूमतों को करना चाहिए। अच्छा, इसके ऊपर बहुत सारे क्रिटिसिज्म भी हैं कि लोग इसको कहते हैं कि ये एक शॉर्ट टर्म पॉलिसी थी पाकिस्तान की। नेशनल एक्शन प्लान वाज बेसिकली short term policy. Government of Pakistan in order to eradicate the phenomenon of terrorism should adopt short term, mid term and long term strategies. और उसके लिए कम्प्रीहेंसिवली काम करने की जरूरत है, उसको देखने की जरूरत है कि कैसे करें। कराची को जराइम से पास कर दिया तो कराची के लोगों की मसाइल को किसने हल करना था? उनके गटर उबल रहे हैं, उनको पानी पीने को पानी नहीं मिल रहा, उनके घरों में बिजली नहीं है, उनके जनाब सिवरेज उबल रहे हैं। क्या हालात हो गए हैं कराची के? कूड़ा करकट की वजह से कराची इतना खूबसूरत जो रोशनियों का शहर था, वह कूड़े करकट का ढेर बन गया। यह हुकूमत की जिम्मेदारी थी, नाअहली की वजह से ये बेड़ा गर्क हुआ, कराची के हालात इतने खराब हुए। और फिर एक स्कीम के तहत गटरों को बंद किया गया, बोरियां भर भर के रेतों की जो गटरों के धाने थे उनके अंदर फेंकी गई ताकि पानी उबले, और पूरे कराची का जो ये जो सीवरेज का सिस्टम था उसको ब्लॉक किया गया, ताकि साबित हो सके कि हम ही लोग अच्छे थे, नए आने वाले लोग बुरे हैं, और एमक्यूएम ही कराची के मसाइल को हल कर सकती है, और बोरीबंद लाशों वाली पॉलिटिक्स ही वो कर सकते हैं। एमक्यूएम जो लंदन वाले हैं, अल्ताफ, जिन्होंने स्टेट के खिलाफ वेपन उठाए, आज़ादी का नारा लगाया वगैरह वगैरह। तो ये एक स्कीम के तहत उसको तबाह बर्बाद की। ये अब हुकूमत होती तो इन चीज़ों को सही करती, कराची को कूड़े का ढेर ना बनने देती। तो लोग कहते हैं ये शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजी है, लॉन्ग टर्म होनी चाहिए, और लॉन्ग उसी वक्त हो सकता है कि जब ये करे। इसके अलावा अभी भी पाकिस्तान के अंदर टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हो रही हैं, बैंड आउटफिट्स काम कर रही हैं, ब्रीडिंग ग्राउंड्स ऑफ टेररिज्म इज नॉट बीइंग एलिमिनेटेड येट, बलोचिस्तान रिकन्सिलिएशन इज नॉट बीइंग कंप्लीटेड येट, पॉलिटिकल रिफॉर्म्स इन फाटा को मुकम्मल तौर पे इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है, सोशल इकनॉमिक पॉलिटिकल रिफॉर्म्स लाने की ज़रूरत है। जिन इलाकों के अंदर पॉवर्टी इलिटरेसी है, बहुत ज़्यादा इग्नोरेंस बहुत है, वहाँ पे यूनिवर्सिटी, स्कूल्स, कॉलेजेस एंड द बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करने की ज़रूरत है। ओनली देन पाकिस्तान कुड बिकम अ पीसफुल कंट्री, अदरवाइज ये हालात बहुत ख़राब होने और हर स्ट्रैटेजी नाकाम हो जाएगी अगर उसको गवर्नमेंट की सपोर्ट ना हुई, गवर्नमेंट के विल उसके अंदर इन्वॉल्व ना। जी बेटा, और कोई क्वेश्चन कोई बात करना चाह रहे हैं, प्लीज लेट मी नो। सर जी बेटा। सर ये जो आप करें सर ये जो नेशनल एक्शन प्लान बना था आईपीएस अटैक के बाद,
सर इसके जो दो पहले पॉइंट्स हैं कि एक जो दहशतगर्दों को सर ये सजाए मौत दी जाएगी और दूसरा ये कि जो उनको मिलिट्री कोर्ट से दी जाएगी। तो सर ये दो जो पॉइंट्स है वो मिलिट्री अभी कोर्ट से नहीं, मिलिट्री कोर्ट से नहीं, जिन टेररिस्ट को अदलिया ने कह दिया कि इनको हैंग कर दो, तो पीपल्स पार्टी ने 5 साल में एक बंदे को भी हैंग नहीं किया। फिर नून लीग की गवर्नमेंट आई, उसके ऊपर भी यूरोपीय यूनियन का वो आ गया, वो 10,000 के करीब पहुंच गए बंदे। अब वो 10,000 जो टेररिस्ट कातिल थे वो आपकी जेलों में बैठ के क्या कर रहे हैं, वो मजीद टेररिस्ट प्रोड्यूस कर रहे थे, तो उनको खत्म करने की जरूरत थी। वो अफवाहें बाद में की हैं, फिर बड़ी मिलिट्री कोर्ट्स ने उठा के बंदों को लटकाया, फिर ये बड़ी न्यूज बनी है बड़ा ज्यादा। और सर इसमें सर वकीलों ने भी सर ये कहा था कि जिस तरह सर आसमा जहांगीर थी, उन्होंने भी सर इसकी मुखालफत की थी कि ये जो टेररिस्ट हो या कोई दूसरा बंदा हो उसको नहीं लटकाना चाहिए, यानी कि जराइम को खत्म ना करें, उसको जिंदा रहने दें ताकि वो आइंदा भी आपको तंग करता रहे। अजय जी और क्वेश्चन जी बेटा। सर ये बलूचिस्तान रिकंसिलिएशन से था हवाले से जी बेटा, जैसा कि आपने कह रहे हैं कि जो पहाड़ों पे ग्रुप बैठा हुआ है उसे वापस जो है हथियार वो वगैरह हर चीज़ गिव अप कर देनी चाहिए। सर हथियार जो उन्होंने उठाए तो वो तो इस जो भी मतलब ग्रुप्स थे उन्होंने जो हथियार उठाए हैं वो तो उसके मतलब जो गवर्नमेंट ने या जो भी दूसरी फोर्सेस हैं उनके जुल्म के बाद उठाए हैं सर। जैसा कि वहाँ पर खारान आवारान और इस ऊपर इलाकों में वहाँ पर सर औरतों के साथ नाजायज़ी की जाती थी इतने हद तक। और रिसेंटली सर ये आपने केस सुना होगा हयात बलोच का, जो अपने बाग में काम कर रहा था तो उसे भी उठाकर उसे मार दिया गया सर। और अभी जो रिसेंटली उसका जो केस आया है, जो उसका डिसीजन निकला है वो ये निकला है कि विंग कमांडर की बजाय वो जो सोल्जर है उसे फांसी दी जाए। तो मैं ये पूछ रहा था कि इस हवाले से क्या। अच्छा देखिए मेरी बात सुने, अब आपकी बातें ठीक है, मुझे समझ आ रही है आप क्या कह रहे हैं, सारी बात मुझे समझ आ रही है आप लोग क्या कह रहे हैं, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। हयात बलोच को जिसने गोलियां मारी उसी बंदे को फांसी देनी चाहिए थी, या पूरे लाइन के अंदर अगर 150 ऑफिसर हैं उसके कमांड में उन सबको फांसी दे दी जाए। आपको पता है फोर्सेस के अंदर एक खास कोटे के तहत गोलियां दी जाती हैं, नंबर लिखा जाता है उसके ऊपर जो होता है। तो जिस बंदे ने गोली मारी थी उसको उसके वो फ्रांसिक टेस्ट हुआ, उसे पकड़ा और उसको सजा दी गई। बाकी जो बात आप कह रहे हैं कि वो अपने राइट्स के लिए पहाड़ों के ऊपर चढ़े हैं, मैंने कभी भी ये नहीं कहा कि वो अपने यानी कि डेप्रिवेशन थी, जहाँ जहाँ पे डेप्रिवेशन होगी वहाँ पे सेंस ऑफ रिवोल्ट आएगी, और जहाँ पे सेंस ऑफ रिवोल्ट होगी वहाँ पे तशद्दुद वायलेंस आता है। तो ये बात ठीक है आपकी बात, लेकिन जुनैद अनवर बेटा बात ये है कि हमने रियासत ने कभी भी बलूचिस्तान के अंदर रिफॉर्म से इनकार नहीं किया। अताउल्ला अख्तर मेंगल, खैर बख्श मरी, अकबर भुगटी, ये वो लोग हैं जो बलूचिस्तान के अंदर चीफ मिनिस्टर भी रहे, गवर्नर भी रहे और मिनिस्टर्स भी रहे और सेंट्रल लेवल पे भी मिनिस्टर्स रहे, और इनके पास पैसा होता था, रियासत उनको देती थी, लेकिन इन्होंने बंदरबाट की अपने इलाकों के अंदर, अपने खानदानों के अंदर, और एक खास सिस्टमेटिक 40 सालों के अंदर एक सिस्टमेटिक अंदाज में ना स्कूल खुलने दिए गए, ना कॉलेजेस खुलने दिए गए, ना हॉस्पिटल बनने दिए गए, और एक इग्नोरेंस की फजा क्रिएट की। स्टेट की पॉलिसी जहां तक रिसोर्सेज से रिलेटेड है वो आपकी बात बिल्कुल बजाय है, 100% है। स्टेट को ज्यादा फोकस करने की जरूरत है, स्टेट ने अपनी नेग्लिजेंस की है, लेकिन सिर्फ इसको स्टेट के लेवल पे ये कहना कि ये सिर्फ स्टेट कर रही है, स्टेट ही रिस्पॉन्सिबल है इसकी, ऐसी नहीं है। अब इस वक्त 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में सूबों के पास ज्यादा प्रोविंशनल ऑटोनॉमी है, सूबों के पास सेंटर से ज्यादा रिसोर्सेज हैं, ज्यादा पॉलिटिकल पावर है, ज्यादा उनके पास विल है, दे गॉट मोर पावर्स, ईच एंड एवरीथिंग के ऊपर दे गॉट देयर ओन कंट्रोल। अब भी अगर वहां पर हॉस्पिटल्स ना बने, कॉलेजेस ना बने, इंस्टीट्यूशंस क्रिएट ना हो, टेररिज्म हो रहा हो, लोग पहाड़ों पे चढ़ रहे हों, सेक्टेरियन वायलेंस चल रहा हो, तो इसमें सेंटर की तरफ देखने की जरूरत नहीं है, अब उनको अपनी गवर्नमेंट की तरफ देखने की जरूरत है। और ये उसी वक्त होगा जब हम लोग पढ़कर, आप लोग जैसे जुनैद अनवर और जिस तरह के जो दूसरे लोग हैं, जो संगीन खान जो नजर बलूचिस्तान से जो लोग बच्चे आए हुए हैं, वो जब पढ़कर लिख कर
इस सिस्टम के अंदर आके अपने इलाकों के अंदर चेंज करेंगे। मेरे पास 3 डीसीओ की और एक कमिश्नर की मिसाल है जो कि सीएसएस करके गए 2007 के बाद 8, 13 और 14 के अंदर, और उनको उनके इलाकों में पोस्ट किया गया एंड दे हैव लिटरली क्रिएटेड अ डिफरेंस ओवर देयर। वहाँ पे छोटे छोटे डिस्पेंसरीज बनाई गई, कॉलेजेस छोटे छोटे मंजूर करवाए, स्कूल मंजूर करवाए, वाटर की सप्लाइयाँ शुरू की उन्होंने, वाटर सप्लाई लाइन्स शुरू की, आर्मोसिस सिस्टम से लेकर गए, तो दे क्रिएटेड अ डिफरेंस। और ये आप लोग, ये एक खास मेंटालिटी के जो लोगों ने इनको रोक के रखा, इनके पास पावर्स भी थी, पैसा भी था, बट दोज पावर्स एंड रिसोर्सेज दे वर नॉट बीइंग यूज्ड अर्लियर फॉर द सेक ऑफ फॉर द वेलफेयर ऑफ पीपल, और हालात को सिस्टमेटिकली ख़राब किया गया। अब इस नहज में पहुंच गए कि स्टेट और प्रोविंशनल अटारनी दोनों हेड ऑन एक दूसरे के खिलाफ। रियासत ने अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं की, इसमें कोई शक नहीं है, जिस तरीके से करना चाहिए था करने की, लेकिन इसको और लोगों ने भी बहुत एक्सप्लॉइट किया और इस वजह से हालात इस नहज में पहुंचे। अब अगर वो चाहे बुनियाद क्या कहते हैं उसको, आप कहें कि अपने फंडामेंटल राइट्स के लिए ऊपर पहाड़ों पे चढ़े हैं, औरतों के साथ ज्यादतियां हो रही हैं, अब वो मारा जा रहा है, तो ये बेटा स्टेट की पॉलिसी नहीं है। बलूचिस्तान के अंदर मोर देन 56 to 63 dissident groups they are working, they are being financed, they are being trained, they are being directed, commanded by enemy intelligence agencies, और वो इस तरह के वाक़यात करके पाकिस्तान के इमेज को दुनिया में डिस्टॉर्ट करते हैं, और फिर उसकी रिजेंटमेंट लोगों में आती है, और वो उस रिजेंटमेंट की वजह से हालात और ज़्यादा ख़राब होते हैं। तो मेरे ये कहने का मतलब है कि जहाँ ये स्टेट की पॉलिसी नहीं है, और हाँ, अगर किसी यूनिफॉर्म में पहने हुए बंदे ने अपने यूनिफॉर्म की ताकत को इस्तेमाल किया है, रिसोर्सेज को इस्तेमाल किया है, तो ये उसका इंडिविजुअल फैक्ट है। इट इज़ नॉट द स्टेट पॉलिसी के इमरान खान ने इस्लामाबाद में बैठ के ये हुक्म दिया है कि इस बंदे को मारो, ये पॉलिसी अडॉप्ट करो। दिस इज नॉट अ स्टेट पॉलिसी, ये स्टेट पॉलिसी नहीं है। 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ की पॉपुलेशन के अंदर एथनिक बलोचों की ये जो प्रोपेगेंडा चलता है कि द स्टेट ऑफ पाकिस्तान इज इन्वॉल्वड इन द एथनिक क्लिंजिंग ऑफ बलोचिस्तान, जिनोसाइड कर रही है, ये प्रोपेगेंडा है। 5, 6, 7, 8 हज़ार जो लोग हैं, जिनको भी बहुत सारे, मैं इनके बारे में बहुत सारी चीज़ें जानता हूँ, आप मेरे साथ ऑफिस में आके भी ये चीज़ें डिस्कस कर सकते हैं। ये बेटा जुनेद, ये स्टेट पॉलिसी नहीं है, इसको स्टेट पॉलिसी समझने की जरूरत नहीं है। सम पीपल बिकॉज ऑफ देयर वेस्टेड इंटरेस्ट दे यूज द पावर्स अंडर देयर कमांड एंड दिस इज हाउ दे बिकम अ कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर टू इग्नाइट द फायर, वो बन जाता है। लेकिन ये स्टेट की पॉलिसी नहीं है, बल्कि ज़्यादातर हालात ख़राब करने में बाहर की एजेंसियों का भी बहुत ज़्यादा हिस्सा है, और इन सारी चीज़ों को देखकर ही हम मामलात का सॉल्यूशंस कर सकते हैं, अदरवाइज ये चीज़ें नहीं होंगी। क्वेश्चंस बेटा और भी होंगे, मैं ले सकता हूँ, लेकिन आई वुड बी सजेस्टिंग यू 2-3 चीज़ें मैं अनाउंस करना चाह रहा हूँ आप लोगों के लिए। पहली बात ये है कि व्हाट यू हैव टू डू गाइस, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। पहली इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप लोगों ने 16th ऑफ दिस मंथ को यू हैव टू सबमिट मी योर प्रोजेक्ट, और मैंने कोई डायरेक्ट नहीं किया, मैंने कोई टाइटल नहीं दिया, टेक एनी टॉपिक ऑफ योर चॉइस दैट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द नेशनल सिक्योरिटी ऑफ पाकिस्तान, उसके ऊपर ट्राई टू फाइंड द आंसर। प्लस आपने इसके ऊपर जो आपने प्रोजेक्ट में लिखा है, जो प्रोजेक्ट में आपने लिखा, उसके ऊपर 3 मिनट्स to 5 मिनट्स की प्रेजेंटेशन बनानी है। 3 मिनट्स to 5 मिनट्स की प्रेजेंटेशन बनानी है, वो आप लोगों ने गूगल ड्राइव पे हम लोगों को सबमिट कराना है, वो वैसे आपकी प्रेजेंटेशन काउंट की जाएगी। वो वाइवा प्रेजेंटेशन में 5 नंबर के लिए दिए जाएंगे। तो टोटल प्रोजेक्ट के 20 मार्क्स हैं, 15 मार्क्स का प्रोजेक्ट है और 5 मार्क्स की प्रेजेंटेशन है, तो ये आप लोगों ने करना। दूसरी बात बेटा है कि ये बात मेरी गौर से सुन लीजिए, जो लोग 70% से कम अटेंडेंस रखते हैं, जो लोग भी, उनको मैं फाइनल एग्जाम में पास नहीं करूंगा, शॉर्ट अटेंडेंस दूंगा। अगर आपके कोई लॉजिकल रीजंस थी, कोई पॉइंट्स थे, अपने दोस्त सहबाब को यूज़ करके, ईमेल्स को यूज़ करके अपने एविडेंस टीचर्स को दें, उसको वेरीफाई करवाएं, ताकि आप लोग फाइनल में जो आपका एक्चुअल ग्रेड बनता है वो लें, अदरवाइज आपको फेयर कंसिडर किया जाएगा। आई थैंक यू मच, सी यू टिल माय नेक्स्ट इमीडिएट क्लास।